are you all? कैसे हैं आप सब? What's up, guys? So again, I'm here with all of you guys. Let's start the session. My name is Seema Priya. I'm your science educator. So today we are going to learn about respiration chapter and what is breathing and how respiration occurs in human being. All these things we are going to do today. So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I'm your science educator. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience in school. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th standard in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So, guys, again, I am telling you that tomorrow is off for all of you. Tomorrow is no any class on 31st, and then again we will meet on 1st. ओके 1 जनवरी को हम फिर से मिलेंगे तो 31st को जरा सेलिब्रेट कर लिया जाए तो जस्ट सेलिब्रेट ओके इट्स गुड कि नए साल का वेट किया जाए मस्ती के साथ एक दिन कुछ देर के लिए पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा सा हट के थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए सो warm welcome to this crack CBSE class 7 guys. So let's talk about iconic subscription guys. Here you are getting personal mentor means one-to-one guidance from top experts where you can resolve your concerns, you can chat, you can interact with your educator, you can clear your doubts. Your parents can also connect here, guys. Regular open hours होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे your parents can also connect here and they can also get your feedback. Here you are getting live doubt solutions. It means you can attend here if you stuck somewhere, if you're not getting anything, then this is the place, guys, where you can clear your doubts. Here you are getting all the benefits of plus courses, live classes, and all the things. Look at here in plus courses, what are the things? In daily live classes, guys, you can chat with your educator, you can engage in discussions, you can clear your doubts. So all the things you can do here. Here you are getting structured courses, all the courses that you can say that are made by your educators, that is actually according to your exam point of view. Here you are getting live tests and quizzes which help you to analyze yourself, where you are lagging, how much more you need to work. Here you are getting unlimited access, guys. If you take only one subject subscription, the rest are free. You have to pay for only one. And if you miss any class, then you can watch that recorded sessions again and again. Who are going to take your classes? Top educators. If we talk about comprehensive syllabus, guys, in science there are 29 courses, 2 upcoming. In maths there are 24 courses, 8 upcoming. In English there are 18 courses, 2 upcoming. In social science there are 17 courses, 1 upcoming. And Hindi में 4 courses हैं. Now look at here. What you have to do for all these things? जल्दी जल्दी लर्निंग आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और जल्दी से अन अकेडमी का हिस्सा बनना है. Why Telegram group is important? Because guys, here you are getting all the notification informations, guys. सारी notification informations आपको यहाँ पे मिलती हैं. Now, how much you have to pay for plus courses, guys? Accordingly, for respective months, you have to pay. And if you will use my code as SEEMA10, you will get 10% extra discount. You can see here, guys, बहुत ज़्यादा discount मिल रहा है. You can, if you go for a home tuition or if you go for a any institution, guys, definitely आपको यहाँ से twice या 3 times ज़्यादा pay करना पड़े. If we talk about iconic subscription, guys, here for respective months you have to pay this much. And if you will use my code as SEEMA10, you will get 10% extra discount. Now, guys, let's start the chapter. Yesterday, guys,
I have explained you how respiration takes place in different microorganisms, in different organisms. So again, I am going to take those topics because I have told you yesterday कि मैं आज आपको उसको अच्छे से videos के साथ explain करूंगी. So I am going to explain it again. I hope you all are ready to learn all the things because guys, I think आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लंग्स के बारे में. ओके, दैट लंग्स हेल्प्स अस, लंग्स हेल्प करता है इस सभी ऑर्गन्स में. आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में. ओके, फॉर दिस पार्ट. ओके, नाउ लुक एट हियर. As may I think yesterday also we have discussed about respiration. Let do it again. Respiration is what? It's a biological biochemical process, guys. It's a basically when we take oxygen, it's going into our body. It goes into our body. It breaks down our digested food and gives our body energy. And at the same time, two kind of waste products also releases, that is carbon dioxide and water. ये सबसे simple आपका definition है. ठीक है. This we have already I think done. Now guys, let's start with the organs. So I think आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि organs जो होते हैं breathing के लिए वो हर एक animal में different होते हैं. Different animals have different organs. Okay, and different process also. Let's start with microorganisms, guys. Okay. So if we talk about amoeba and all these small microorganisms, guys, they can there the exchange of gases takes place through their body surface. If we talk about guys earthworm and leeches and all, so definitely वहां पे आपका slimy surface होता है जहां पे आपका इसके थ्रू exchange of gases होता है. You can see ठीक है. If we talk about this, what is this? You have to tell me क्या है ये? It's a caterpillar बच्चा. So कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं ये लोग? ये इन लोगों का क्या प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का? So you all have to learn these things कि कैसे वो बॉडी के सरफेस से स्किन से किस तरीके से वो लोग ब्रीथ करते हैं. Okay, guys. Now next is respiration insects. If we talk about insects, guys, this we have already done. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि yesterday we have already done it. आज सिर्फ हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं. If we talk about guys, grasshopper or cockroaches, anyone, and I'm taking only grasshopper here. So they have a proper tracheal system. बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं. You can see a grasshopper बच्चा. यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसके आगे वाला, ये प्रॉपर इसका ट्रैकियल सिस्टम होता है और इसी के थ्रू ये प्रॉपर रेस्पायर करता है. सिमिलरली ग्रास हॉपर की तरह ही आप कॉकरोचेस का भी सेम इसी टाइप से होता है. एंड थ्रू दीज स्पाइरिकल्स दे रेस्पायर और exchange of gases occurs through these. Is this clear, guys? Is this clear? So, is there any doubt, guys? So you all have to understand. I explained this yesterday. I have already explained all these things, but again I'm explaining it with this video ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आए. So I hope आप सबको ट्रैकियल सिस्टम दिख रहा होगा इनका. ठीक है, ग्रास हॉपर का. And you all are able to understand now with this that through these trachea, guys, they exchange gases or they respire. Now, and insects takes air through tiny holes. उसी को स्पैरिकल्स कहते हैं जो कि लोकेटेड होता है. You can see here. ठीक है, so वहीं पे उसी के थ्रू स्पैरिकल्स के थ्रू ही वो आपका सांस लेते हैं. Now next is guys respiration in birds. तो lungs होते हैं birds के पास. Look at here, guys. बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. सो यू कैन सी अ ब्यूटीफुल बर्ड्स. कितने प्यारे बर्ड्स हैं ये. वाओ, दैट्स रियली नाइस, वेरी नाइस गाइस. वाओ, very nice. Okay, so these are the birds, guys. And birds have proper pair of lungs. Okay, इनके पास proper pair of lungs होते हैं जिनके थ्रू ये लेते हैं सांस.
Next is, guys, if we talk about respiration in fish, so fish are vertebrates living in water. The rate of breathing of aquatic, obviously जो aquatic animals होते हैं guys, उनका breathing जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज लैंड पे ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होता है बजाय की वाटर के. वाटर में कम एयर प्रेजेंट होने की वजह, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वो सांस थोड़ा जल्दी हाई रेट में लेते हैं. ठीक है. फिशेस हैव सर्टेन प्रोजेक्शंस गाइस ऑन देयर बॉडी नोन एज गिल्स कहते हैं उन्हें. दीज आर फेदरी ऑर्गन्स एंड दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं और गाइस उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं और उसी गिल्स से ही के थ्रू ही वो अंदर की तरफ मूव करते हैं. एंड इट टेक्स वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेस इट थ्रू द गिल्स और गिल्स के थ्रू फिर वो एज अ वाटर पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स. द डिजॉल्व ऑक्सीजन जो उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है वो आपके ब्लड वेसल्स में, क्योंकि चारों तरफ गिल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को ले लेगा और पूरे फिश के पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देगा. यू कैन सी यू कैन सी ओके गाइस लुक एट हियर. सो यू कैन सी दीज फिशेस, इन सारी फिशेस के आपको गिल्स नजर आ रहे होंगे साइड वाले पोर्शन में, देखिए. ठीक है. सो दीज गिल्स जो है, दीज गिल्स हेल्प देम टू रेस्पायर, सांस लेने में इनकी मदद करते हैं. ओके, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो रियली नाइस नाइस, वेरी नाइस. सो फिशेस जो है वो कैसे सांस लेते हैं? थ्रू देयर गिल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बात पता होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन. Okay, now next is, if we talk about respiration in frog, guys, so frog are short bodies, tailless amphibians. मैंने बताया हुआ है आपको. Yesterday I have explained it that amphibians means which live on land as well as in water. They are carnivores. They have a dual system. इनके पास dual system होता है. ठीक है, जो इनकी हेल्प करता है सांस लेने में. They have a pair of lungs like human being. ठीक है, हमारी तरह pair of lungs होता है, तो इनके पास ड्यूल. सो ये एक नंबर एक क्वेश्चन में आ सकता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो अगर पानी में रहता है तो कैसे रेस्पायर करता है, अगर वो आपका लैंड पे रहता है तो कैसे रेस्पायर करता है. ठीक है. अगर वो गाइस पानी में रहता है सो वो अपने मॉइस्टली में स्किन से सांस लेता है, स्किन के थ्रू. और अगर वो लैंड पे रहता है तो वो अपने प्रॉपर लंग्स के थ्रू सांस लेता है. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? Okay, 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 okay. So, guys, this is your frog. Okay, look at here. If frog lives in water, then it respires through their moist skin. अभी ये अपनी स्किन से सांस ले रहा है क्योंकि पानी में है. इसके पास ड्यूल सिस्टम होता है. इन लोगों के पास लंग्स भी होता है और स्किन के थ्रू. पानी में है तो वो फिर अपने स्किन के थ्रू सांस लेंगे. Is this clear, guys? Are you getting everything? I hope you are understanding each and everything. Okay, that's great. So, guys, so actually ये आपका हो गया. और if the same frog, अगर वो frog पानी से निकल के बाहर आ जाए, so guys, in this case, that frog respire through their lungs. वो lungs के through respire करना start कर देंगे. Is this clear, guys? Is this clear? So are you getting everything? फ्रॉग का समझ आ गया ड्यूल कैसे सिस्टम होता है, लंग्स के थ्रू भी सांस लेते हैं और उसके साथ साथ वो टेल मी लंग्स के साथ साथ और किससे सांस लेते हैं वो? Moist skin से. Okay. Now guys, if we talk about earthworm, then earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate guys. और सॉइल के ऊपर वाले लेयर में पाया जाता है. और सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है. डार्क ब्राउन कलर सब्सटेंस जो होता है. लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर. सो दीज आर एक्चुअली अर्थवर्म्स. और यही अर्थवर्म्स जो है देख सकते हो आप, ये सॉइल के सबसे टॉप मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. और ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है. लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर. Are you able to see everything? And is this clear to all of you? I hope you are understanding each and everything. So I made this
thing again for all of you to make you understand in easier way. So I hope you are all understanding everything. Okay, that's great, guys. That's great. And again, I'm just seeing the charts here. Okay, so Harsh is regular here and Abhishek also. So that thank you so much, guys, for coming every day and attending my class. So it's really nice of you. Okay. So these are earthworms, guys. Okay. Now, guys, if we talk about respiration in plants, so plants also respire, guys, by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. प्लांट्स के पास गाइस जो एयर एक्सचेंज करने के लिए गैस एक्सचेंज करने के लिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू those stomata present on underside of the leaves, guys. Okay, so through those stomata that exchange of gases occurs. Okay, you can see here, guys. Okay, you can see here. So these are the leaves, guys. If we see here, so in leaves में छोटे छोटे pores होते हैं और उन्हीं pores के through gases exchange होता है, ठीक है, plants सांस लेते हैं. Is this clear, guys? I hope you are understanding everything. Okay. So have you understood? Have you understood, guys? Still here, have you understood? Okay, that's great. Now, look at here. Next. Now, what is breathing, guys? So the process of respiration requires oxygen to break down food and convert it into energy. ब्रीदिंग का मतलब बेसिकली आपको मैं बताती हूँ, सांस लेना और छोड़ना. इनहेल एंड एक्सेल, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर, ओके, दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. आप जरा यहां देख लेते हैं होता क्या है, गाइस. एक्सेलेशन के टाइम पे यू कैन सी जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो गाइस उस टाइम क्या होता है, सांस ज्यादा से ज्यादा जितना भी इम्प्योर गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसे दैट शुड बी कम आउट, वो बाहर आना चाहिए. उसके लिए क्या होता है, डायफ्रेगम गाइस ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, और आपके रिब्स जो है ना, जो जिनके अंदर लंग्स है तो उसके ऊपर जो रिब्स है, जो एक तरीके से टोटल 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को. तो वो जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो रिब्स नीचे होता है, डायफ्रेगम ऊपर होता है एक्सेलेशन के टाइम पे, ताकि ऐसे प्रेस हो जाए. देखो ऐसे प्रेस होगा तभी तो उसमें से ज्यादा. जब हम कोलगेट ब्रश करते हैं और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, हम क्या करते हैं, उसको ऐसे प्रेस करते हैं ताकि और निकले. सिमिलर वे है. तो आप प्रेस, जब एयर बाहर निकालना है तो इसका मतलब वो प्रेस, तो प्रेस कैसे होगा, डायफ्रेगम नीचे, ठीक है, सॉरी, डायफ्रेगम ऊपर और रिब्स नीचे, ठीक है. और इनहेलेशन में क्या होता है, जब आप सांस लोगे उस टाइम पे क्या होगा, आपका रिब्स जो है, रिब्स आपके हो जाएंगे ऊपर की तरफ और डायफ्रेगम हो जाएंगे नीचे की तरफ, दोनों अपार्ट हो जाएंगे. दे हाँ, ये दूसरे से, मतलब एक नीचे और एक ऊपर, ताकि उनके बीच में गैप आए और ज्यादा से ज्यादा एयर जा पाए. इज दिस क्लियर? तो एक्सहेलेशन के टाइम पे ऐसे और इनहेलेशन के टाइम पे ऐसे, तो ये याद कर लो, ऐसे ऐसे. तो इन एक्सहेलेशन में ऐसे का मतलब क्या हुआ, डायफ्रेगम ऊपर रिब्स नीचे. इनहेलेशन के टाइम पे ऐसे का मतलब क्या है कि रिब्स ऊपर डायफ्रेगम नीचे. इज दिस क्लियर, गाइस? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ गाइस, इफ यू टॉक अबाउट ब्रीदिंग रेट, वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक आपको पता है कि ब्रीदिंग रेट 70 to 72 होता है, ठीक है. ओके, व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन, गाइस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूजन, गाइस, इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू area of its higher concentration without any application of energy. Actually, guys, you can, if I have to explain this diffusion process, diffusion means the process in which the particles, gas particles हो गया, liquid particles, they move from higher concentration to lower concentration. Here one mistake is here, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, लोअर से नहीं हायर से लोअर में जाता है, ठीक है. हायर से लोअर में क्यों जाता है, गाइस? बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप ऐसे समझो,
इफ यू हैव अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आपको एक छोटे से कप में पानी डालना है, तो आप जब उसमें पानी डालोगे तो उसमें बड़े वाले ग्लास में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और कप में बिल्कुल नहीं है। यू इफ यू आर पोरिंग वाटर इन दैट, सो एक्चुअली आप क्या करो, उस वाटर को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हो। सिमिलरली इफ यू हैव 1 kg शुगर इन एनी कंटेनर, आप उससे 2 स्पून चाय में जब अगर आप डाल रहे हो दैट शुगर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस शुगर को आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से वो जहां उसकी मात्रा कम है उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी गाइस इफ वी टॉक अबाउट दैट, यहाँ देखो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है गाइस, इवन इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स हो गया, हम किसी के बारे में भी बात करें, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हमारे बॉडी में कम है। तो जब हमने सांस लिया तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आया। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही ये होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब कोई चीज मूव करती है। इज दिस क्लियर गाइज? Is this clear? So during the breathing process, the movement of ribs and diaphragm takes place. ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। I hope you have understood each and everything. यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका मतलब है ये वाला पोजीशन होता है, मतलब डायफ्रैगम नीचे, सॉरी डायफ्रैगम ऊपर और रिब्स नीचे। एंड इफ वी आर इनहेलिंग, जब हम सांस ले रहे हैं तो रिब्स आपके ऊपर की तरफ हो जाएंगे, डायफ्रैगम नीचे हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर कर सके। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन सी गाइस। आपको पता होना चाहिए कि लंग्स में ना, लंग्स में ये दिस इज योर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई, ठीक है, दो है। एंड गाइस ये जो है ये एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स ना एल्वियोली भी इसको कहा जाता है। एल्वियोली क्या हेल्प करता है, एल्वियोली जो है एयर बैग्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसमें ना जब एयर आता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उन्हीं एयर बैग्स के अंदर वो जाके फिल होता है, ठीक है। मतलब एयर जब गया यहाँ से ट्राकिया से, तो लंग्स के अंदर जाके वो फिल हो गया, किस में, एयर बैग्स में। और फिर उसके चारों तरफ ना आपके ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियां होती है, वो क्या करता है उस एयर को ना, जो उसमें ऑक्सीजन है ना उसको ले लेता है अपने अंदर, और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में वो फिर ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। एंड देन पूरे बॉडी से जो वेस्ट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गाइस, वो उस पूरे बॉडी से कलेक्ट करके वापस आता है ब्लड वेसल्स और इन एयर बैग्स के अंदर भर देता है, और फिर इन एयर बैग्स के थ्रू वो जो एयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर है वो वापस ट्रैकिया के थ्रू बाहर आ जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? लुक एट हियर, लुक एट हियर कैसे होता है, लुक एट हियर कैसे लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है गाइस, ये देखिए। और ये जो आपको ये जो आपको रूट्स टाइप दिखाई दे रहे हैं, यही आपके एल्वियोली हैं, आपके लंग्स में एल्वियोली होते हैं, ठीक है। यू कैन सी, ठीक है, आपको आई थिंक इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? look at here guys। सो ये आपका क्या है, दिस इज योर हार्ट, ये तो बेसिकली आपका हार्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ट हो गया। लेकिन रिब्स के यहीं पे आपके लंग्स भी होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कहाँ पे किस पोजीशन पे होता है लंग्स। आई कैन शो यू यार, देख लो एक बार जरा, ठीक है। सो लंग्स क्या होता है, आपके इसी तरीके से जो आपका रिब्स होता है उसी के अंदर आपके लंग्स भी होते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको जो ये जो कलर पार्ट, लाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यही आपके, ठीक है, एल्वियोलीज हैं, बहुत सारे आपके मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज प्रेजेंट होते हैं आपके दोनों दोनों लंग्स में। और यही हेल्प करता है आपका, यही जो प्योर गैस, जो मतलब आपका एयर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने अंदर फिल करके उसे पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है, और पूरे बॉडी से लाके जो वेस्ट CO2 है वो भी अपने अंदर इकट्ठा करते जाता है, और फिर उसको टाइम टू टाइम जैसे हम सांस रिलीज व्हेनेवर वी एक्सेल, सो वो हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर। सो ये आपका एल्वियोली है, आर यू एबल टू सी दिस पार्ट, दिखाई दे रहा है ये? सो ये ब्रोंकाई है, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट, ये डायफ्रेगम है, दिस इज योर डायफ्रेगम। ये आपका ट्राकिया है, विंड पाइप जिसे कहते हैं,
ठीक है, यू कैन सी हियर, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दिस इज योर, ये एल्वियोली है, और इसी एल्वियोली में आपके इन एयर बैग्स भी कहते हैं. इज दिस क्लियर? I hope you all have understood. You can see here, these are the lungs. यहीं पे हार्ट भी होता है आपका, इसी जगह पे. ठीक है. So ये आपका था. And I hope you all have understood till here. I hope आपको सब कुछ समझ आ गया हो, and you are understanding each and everything. आपको सब कुछ समझ आ रहा है? Okay, thank you so much guys for telling me that you are understanding each and everything. Now guys, look at here. Look at here, guys. Now, you all should know this, that for instance, heavy exercises like cycling, walking, heavy weight lifting, fast running and many more requires. काफी सारी ऐसी हेवी एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं तो उस टाइम पे गाइस हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में चाहिए होता है, बट उतना ऑक्सीजन एक बार में उसे प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, हमारी हमारी बॉडी नहीं करवा पाती है. क्योंकि जब हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है ना उस टाइम पे, क्योंकि गाइस उस टाइम पे हमें एक साथ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में. वो कब होता है? जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं गाइस. इफ वी आर डूइंग हेवी एक्सरसाइजेस, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस हम करते हैं, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी को एक ही बार में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी एक बार में प्रोवाइड नहीं करवा पाती है. तो उस टाइम क्या होता है गाइस, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, ठीक है, वो हमारे बॉडी में जो सेल्स में स्टोर्ड फूड है उसे ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और उससे फिर हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. इसीलिए हम कहते हैं कि वाइल हैवी एक्सरसाइजिंग और साइकिलिंग और रनिंग और ऑल दीज थिंग्स गाइस, व्हाट विल हैपन, हमारा जो है, हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करती है. हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर क्यों करती है गाइस? एनारोबिकली रेस्पायर इसलिए करती है क्योंकि दैट टाइम गाइस हमारी बॉडी बिना ऑक्सीजन की मदद से हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टेड फूड है, सेल्स में जो प्रेजेंट है फूड, वो ब्रेक डाउन करवा रही है, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है वो. इसीलिए हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है. इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइजेस, जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस टाइम पे आपकी बॉडी को कौन देता है एनर्जी? कौन प्रोवाइड करता है? मसल सेल्स. आपकी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, वो आपके मसल्स में जो प्रेजेंट फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? बट अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर आपकी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट डाइजेस्टेड फूड या पचा हुआ खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, अगर उस टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में क्रैम्प्स और मसल्स, मतलब मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाता है. वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से. क्योंकि जब आपकी बॉडी में मसल सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं आपके डाइजेस्टेड फूड को, जो कि सेल्स में प्रेजेंट है, उस टाइम पे एक साइड इफेक्ट या मान लो कि कुछ आपको नेगेटिव भी होता है आपकी बॉडी में, दैट इज रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम यू फील कि एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू आर फीलिंग नॉर्मल. सो वो कैसे होता है? क्योंकि द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन कम, अब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो आपका वेस्ट है, जो कि सिंपलेस्ट कह सकते हैं सब्सटेंस है, जो कि आपकी बॉडी में फिर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी को नॉर्मल कर देता है. सो हॉट वाटर बाथ और मसाज जो है वो आपके मसल क्रैम्प्स को रिलीफ देता है, उससे आपके बॉडी को रिलीफ देता है. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके ओके ओके. So how faster breathing energies a person, guys? So average breathing rate of an adult. Okay. It's that was actually sorry for that. 15 to 18 breaths per minute. ठीक है, सांस लेने की बात हो रही थी यहाँ पे पर मिनट की. ठीक है,
ठीक है, वो पल्स रेट था गाइस, सॉरी हियर, बाय मिस्टेक गाइस, मैंने बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू हियर, मैंने यहाँ पे गलती से आपको बोला था, बिकॉज ब्रीथिंग रेट की बात चल रही थी। ठीक है, हम कितनी बार सांस लेते हैं, सो दैट इज आर पल्स रेट। ठीक है, कितनी बार पल्स पल्स रेट क्या है, दैट वाज 70 to 70। Yeah, we are talking about the guys breathing rate. So breathing basically हमारा 10 to 15 times होता है। Is this clear, guys? Is this clear? Till here, have you understood? Till here, have you understood? So how fast breathing energizes a person? So 15 to 18 breathes per minute. Breathes per minute. Okay, guys. So till here, have you understood? Okay, so thank you so much, guys, for attending my class. Love you guys, love you so much. And definitely इसके बाद मैं आपका कल 10 to 15 minutes का एक और सेशन लूंगी। ठीक है, सिर्फ 10 to, बिकॉज कल आपका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा, तो मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी। 15 minutes हार्डली आई विल टेक 10 to 15 minutes। ठीक है, मैं लूंगी और फिर आपका ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। So thank you so much for watching my this session. Okay, thank you so much. Love you guys. And one very important thing. Okay, so very important thing, guys. Don't forget to subscribe, like, and share. As I always tell you this, मैं हर रोज आपको एक ही चीज बोलती हूँ। I hope कि आपको समझ आता होगा। Every day I tell the same thing. ठीक है, आप you are very nice students, and I hope, guys, you all understanding each and everything, whatever I teach you every day. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। ठीक है, मेरा ये रिकॉर्डेड सेशन जो है प्रीमियर देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू गाइस, टुमारो अगेन वी विल मीट। ओके, at 8 p.m. Okay, और अगेन आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स मेरा टाइम चेंज हो रहा है, 7 o'clock टाइमिंग रहेगी, और हम 7 o'clock मिलेंगे डेली, एवरी डे वी विल मीट एट 7 o'clock। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय गाइज, बाय बाय।